Hello students, we are seeing science of class 7. Chapter number 10, that is respiration. Okay? Respiration is an important chapter of class 7. It is of biology and this chapter will be in your ASM 1. Okay, for that purpose we are going to see this chapter in detail. Okay, so first of all we all know that, देखो हम सबको क्या पता है कि we know that we need food to get energy. That all we know. We need food to get energy. बराबर, हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है फॉर विच पर्पज वी ईट फूड, दैट वी हैव सीन. अभी फूड जो हमने लिया डाइजेस्टिव सिस्टम से, दैट फूड गेट एब्सॉर्ब्ड बाय आवर बॉडी, दैट वी नो. आफ्टर एब्सॉर्प्शन, वेयर द फूड इज एब्सॉर्ब्ड, द फूड इज एब्सॉर्ब्ड इनटू ब्लड. डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोवाइड अस फूड, ओके, and in digestive system this food is converted into simple food component and it is absorbed in blood. Food is absorbed in blood. ब्लड में फूड क्या होता है आपके, एब्जॉर्ब होता है. अभी ये एब्जॉर्ब होने के बाद में जो सेकेंड पार्ट है कि फूड का कन्वर्शन एनर्जी में करना. फूड जो है हमारी बॉडी को नेसेसरी, ये फूड से एनर्जी गेन करने की जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इट कम्स इन द नेक्स्ट type of body process, that is respiration. Okay, so what is the meaning of respiration? Respiration means what? Respiration means, see, respiration is the process of obtaining energy from food. Okay, what is respiration? Respiration is the process of obtaining food from what? From obtaining energy from food. जो फूड हमने कंज्यूम किया वो फूड का कन्वर्शन एनर्जी में करने की जो प्रोसेस है, the process of conversion of food into energy. The process of conversion of food into energy is called as what? It is called as respiration. अब ये जो respiration की प्रोसेस है ये कहाँ पे होती है? हर ऑर्गेनिज्म में. जैसे कि ब्लड ने फूड को एब्जॉर्ब किया, ये ब्लड क्या किया जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हमारी हार्ट और ब्लड वेसल्स, बॉडी के सारे सेल्स को क्या करती है, ये फूड प्रोवाइड करती है. ओके, उसके बाद में हमें हमारी बॉडी को ऑक्सीजन भी चाहिए. ऑक्सीजन हमें मिलता है रेस्पिरेटरी सिस्टम से. रेस्पिरेटरी सिस्टम से ऑक्सीजन कलेक्ट करने के बाद में हमारे बॉडी के सारे सेल्स को ये जो है क्या, ऑक्सीजन और फूड प्रोवाइड किया जाता है. एंड आफ्टर दैट एवरी सेल इन आवर बॉडी परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. Every cell of our body perform the process of respiration in which food is burned in presence of oxygen to produce what? To produce energy. Food is burned in presence of oxygen to produce energy. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, the process is called as respiration. Respiration is the process of obtaining energy from food. लिख लो अपने नोटबुक में, respiration is the process of obtaining food from energy. Respiration is the process of obtaining energy from food. Obtaining energy from food. Energy मिलना ना फूड से, that is the process of respiration. ठीक है, that is the process of what? Respiration. अभी now see, respiration जो है हमारी बॉडी में कैसे होता है, लिख लो ये पहले. हाँ, respiration की डेफिनेशन. अभी जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस हमारी बॉडी में होती है, दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, इट इज divided into two parts. What is it?
The process is called as internal respiration and another is external respiration. Okay, what is this? The first process is called as internal respiration and second process is called as external respiration. ये जो internal respiration है, that is also called as cellular respiration. Internal respiration, it is also called as what? It is also called as cellular respiration. Internal respiration is called as cellular respiration और दूसरा जो respiration की process है external respiration, that we call as breathing. External respiration का मतलब है breathing. अभी breathing की जो process है ये हम सबको क्या है पता है ना. ब्रीदिंग की प्रोसेस में क्या किया जाता है? ब्रीदिंग की प्रोसेस में हम एयर को हमारी बॉडी के अंदर लेते हैं और उसको रिलीज करते हैं. ये जो प्रोसेस है इसमें हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन रिच एयर हम हमारे लंग्स में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर हम क्या करते हैं? एयर हम एयर में क्या करते हैं? रिलीज करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर इज रिलीज्ड आउट ऑफ our body and oxygen rich air is taken inside our body. The process is called as breathing. The process is called as breathing. Breathing respiration का एक बहुत छोटा सा पार्ट है जिसमें breathing की प्रोसेस आपको क्या करते हैं? It help in exchange of gases. Exchange of gases. Okay, कौन सी gases? Carbon dioxide and oxygen. Carbon dioxide and oxygen, these two gases are exchanged in our body with the process of what? With the process of breathing. ठीक है? So respiration is divided into two types. Internal respiration, that is cellular respiration, which takes place in cell. External respiration, that is called as breathing. That is called as breathing. इनके अलावा भी हम रेस्पिरेशन का एक डिवीजन देखने वाले हैं, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, ये चार टाइप आपके नोटबुक पे ड्रॉ कर लो. हम ब्रीदिंग की प्रोसेस डिटेल में देखने वाले हैं. इंटरनल रेस्पिरेशन की प्रोसेस हम थोड़ा सा देखने वाले हैं, उसका इक्वेशन कैसे बनता है, क्या होता है, वो भी हम क्या करने वाले देखने वाले हैं. लेकिन नाउ यू हैव टू डू इज ड्रॉ दिस चार्ट इन योर नोटबुक ताकि हम आगे बढ़ सकें. ठीक है, ड्रॉ द चार्ट. रेस्पिरेशन की प्रोसेस कहाँ पे होती है उस हिसाब से यू कैन डिवाइड रेस्पिरेशन इनटू इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल जो सेल के अंदर होती है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन. और एक्सटर्नल मतलब रेस्पिरेशन मतलब ब्रीदिंग की प्रोसेस. कौन सी प्रोसेस? ब्रीदिंग की प्रोसेस. ओके, अभी हम देखेंगे सेकेंड टाइप ऑफ चार्ट, दैट इज रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन इज नीडेड and not needed. Depending upon whether oxygen is needed for the process or not, it is divided into two types. Okay, ऑक्सीजन लगने वाला है कि नहीं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन लगने वाला है कि नहीं लगने वाला, इस हिसाब से आप क्या करते हो, इसको टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हो. कौन सी दो कैटेगरीज? इट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, नेमली aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic respiration means what? What is the meaning of aerobic respiration? Sorry for the disturbance. What is meant by aerobic respiration? Aerobic respiration means the process of respiration in which oxygen is needed. जैसे हम करते हैं, हम क्या बगैर ऑक्सीजन के प्रोसेस कर सकते हैं रेस्पिरेशन की? क्या हम जिंदा भी रह सकते हैं ऑक्सीजन के बगैर? ट्राई करके देखें. 30 seconds और 1 minute
टू द मैक्स, वी कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में फूड का कन्वर्शन एनर्जी में कन्वर्ट मतलब करने के लिए हमें क्या लगता है, वी नीड ऑक्सीजन, है ना, वी नीड ऑक्सीजन। व्हाई? बिकॉज वी परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन। सो व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन? Aerobic respiration is the respiration which takes place, the process of respiration which takes place in presence of oxygen, in presence of oxygen। respiration की प्रोसेस जिसके लिए ऑक्सीजन जरूरी है, that process is called as aerobic respiration। रेस्पिरेशन की ऐसी प्रोसेस जिसके लिए आपको ऑक्सीजन कंपलसरी चाहिए, उसे बोलते हो आप एरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे कौन करता है एरोबिक रेस्पिरेशन? ह्यूमंस परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन, काउ, लायन, ऑल एनिमल्स यू कैन से, एंड व्हाट वी से, प्लांट्स आल्सो। प्लांट्स, जितने भी बड़े एनिमल्स आप देखते हो, है ना, मैक्सिमम जो है प्लांट्स एंड एनिमल्स वो क्या करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। अर्थ के ऊपर मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, वो रेस्पिरेशन करते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे कुछ माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया हैं। अनएरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन in which oxygen is not needed. Oxygen is not needed. The process of respiration in which oxygen is not needed is called anaerobic respiration. The process of respiration in which oxygen is not needed is called as anaerobic respiration. Anaerobic respiration perform करते हैं कुछ microbes. For example, bacteria you can see anaerobic respiration परफॉर्म करते हैं। उनको ब्रीथ करने के लिए some bacteria, not all, you can write some bacteria, they perform aerobic respiration। उनको ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑक्सीजन के बगैर भी वो मतलब ब्रीदिंग की प्रोसेस होती नहीं उनमें, वो क्या करते हैं, दूसरी कोई तो भी केमिकल प्रोसेस इस्तेमाल करके फूड का कन्वर्शन करते हैं एनर्जी में। इट इज कॉल्ड एज अनएरोबिक रेस्पिरेशन। और एक बात ध्यान में रखो कि हम जब बहुत एक्सरसाइज करते हैं, हम मीन्स ह्यूमन बीइंग्स व्हेन एंड एनिमल्स आल्सो व्हेन दे परफॉर्म ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज and they need more energy at the time. In our muscles anaerobic respiration takes place। हमारी बॉडी में भी अनएरोबिक रेस्पिरेशन कब होता है, जब हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है, व्हेन वी नीड मोर एनर्जी। ये जो है एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इनसाइड सेल, एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इनसाइड सेल्स, ओके, एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस जो है मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जनरली अनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। उसके साथ में इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस, देन ह्यूमंस के मसल्स में जो होता है, ह्यूमंस के मसल्स में भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस की जाती है, तो वो होती है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। हमेशा नहीं करते, हमेशा ये प्रोसेस होती है क्या, नहीं, इट टेक्स प्लेस ओनली व्हेन यू आर नीडिंग ए लॉट ऑफ एनर्जी। जब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की, बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एट दैट टाइम हमारी बॉडी में कौन सा रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक एज वेल एज अनएरोबिक रेस्पिरेशन। वी डू aerobic respiration as well as anaerobic respiration, okay। So we have seen two type of classification of respiration. Number one is internal respiration and external respiration, and number two is aerobic respiration and anaerobic respiration, okay। Now we are going to see equations for aerobic and anaerobic respiration, मतलब कौन से substances बनते हैं प्रोसेस के अंदर। ये चार्ट पहले ड्रॉ कर लो, पॉज करो वीडियो को और ये चार्ट ड्रॉ कर लो। किया?
एरोबिक रेस्पिरेशन। अभी एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस में देखो क्या होता है। इन एरोबिक रेस्पिरेशन फूड इज बर्न्ड विथ ऑक्सीजन। फूड का क्या किया जाता है, बर्निंग किया जाता है ऑक्सीजन के साथ में। और ये प्रोसेस में बनता क्या है, यू गेट एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस जब होती है तो उसमें फूड और ऑक्सीजन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है। फूड इज बॉन्ड विथ ऑक्सीजन। इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड अलोंग विथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। हम जब ब्रीथ करते हैं तो ब्रीदिंग के प्रोसेस में ब्रीथ आउट करने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज करते हैं और वाटर भी। जैसे अभी ये देखो मेरे पास पेक्ट है, मैं अगर ऐसे करती हूँ इसके ऊपर हवा जो है हमारी एक्सेल्ड एयर, तो आपको दिखेगा इसके ऊपर देखो दो ग्लासेस में फर्क। यहाँ पे थोड़ा सा शेडेड दिख रहा है ना, ये क्यों दिख रहा है, बिकॉज देर इज वाटर वेपर्स विच आर रिलीज्ड बाय माय ब्रीथ। ब्रीथ में से जो वाटर वेपर थे वो इसके ऊपर रिलीज किए मैंने। तो क्यों हुआ ऐसे, क्योंकि हम जो ब्रीथ आउट करते हैं ना एयर, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, इट कंटेन्स वाटर आल्सो। ओके, सो जब भी प्रोसेस होती है, कौन सी प्रोसेस, एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में फूड कौन सा होता है आपका, फूड इज ग्लूकोज। फूड होता है ग्लूकोज के फॉर्म में। ग्लूकोज इज बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। उससे आपको क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और वाटर मिलता है। ठीक है, अभी अगर अनएरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस देखोगे आप, अनएरोबिक रेस्पिरेशन, अभी अनएरोबिक रेस्पिरेशन में फूड से एनर्जी मिलती है लेकिन ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं होता है। फूड का कन्वर्जन एनर्जी में होता है। इस प्रोसेस में आपको एनर्जी मिलती है, एनर्जी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और यहाँ पे एनर्जी के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो प्रोड्यूस हुआ लेकिन वाटर यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होता है। वाटर के जगह पे यहाँ पे प्रोड्यूस होता है अल्कोहल। ओके, वाटर के जगह पे अनएरोबिक रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होता है अल्कोहल। जैसे हम घर पे करते हैं ना, मतलब जब आप ये बनाते हो इडली या डोसा बनाते हो तो उसका जो मिक्सर है वो रात को पीस के रखते हैं, रात भर उसको रखते हैं। कुछ लोग उसमें थोड़ा सा ईस्ट ऐड करते हैं, ईस्ट, ईस्ट ये क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है। ये ऑर्गेनिज्म भी ये प्रोसेस करता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन के। ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, वो सब्सटेंस में जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, आपके बैटर में इडली का जो बैटर है उसमें जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, वो ग्लूकोज से वो खुद को जिंदा रखने के लिए एनर्जी बनाता है। फूड जो था उससे उसने एनर्जी खुद के लिए इस्तेमाल की। ये प्रोसेस में प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आप जब इडली सुबह बेक करते हो तो वो फ्लफी बनती है ना, फ्लफी क्यों बनती है, क्योंकि उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस था वो रिलीज हो गया। जहां जहां पे उसके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे वहां वहां पे छोटे छोटे होल्स बनते हैं, गैप आते हैं वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके साथ में प्रोड्यूस होता है अल्कोहल। अल्कोहल ये जो सब्सटेंस है ना, ये थोड़ा सा स्वीट होता है टेस्ट को, और इसको एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्मेल होती है। इडली का बैटर देखो दूसरे दिन सिर्फ वो ऊपर ही नहीं आता, फूलता ही नहीं, उसके साथ साथ उसको एक टिपिकल स्मेल भी होती है ना, वो स्मेल होती है अल्कोहल की। किस सब्सटेंस की स्मेल होती है वो, दैट इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल। ओके, सो जब भी अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उसमें फूड इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, फूड इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, and in this process carbon dioxide gas and alcohol is produced. In this process carbon dioxide gas and alcohol is produced. Okay, I hope you understand the meaning of anaerobic respiration. ये प्रोसेस होती है ईस्ट में, ये प्रोसेस होती है कई तरह के बैक्टीरिया में, ये प्रोसेस होती है ब्लू ग्रीन अल्गी में, और इस प्रोसेस का और एक नाम है दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। The process has another name. It is also called as fermentation. It is also called as what? Fermentation. अभी थर्ड कंडीशन देखो, अनएरोबिक रेस्पिरेशन।
ह्यूमंस। हमारी बॉडी में भी होती है अनएरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस। कब? जब हम हेवी एक्सरसाइज करते हैं, आफ्टर और आई कैन राइट ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज। आप जब हेवी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो तो आपके बॉडी में भी कौन सी प्रोसेस होती है? अनएरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। इन दिस प्रोसेस व्हाट हैपेंस? सी, फूड is converted into energy. Food is converted into energy plus carbon dioxide plus अल्कोहल की जगह पे अपनी बॉडी में प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड। अल्कोहल की जगह पे हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। और ये लैक्टिक एसिड की वजह से आप लोगों ने देखा, कभी भी आप जब बहुत एक्सरसाइज करने के बाद में हमारे मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं ना, वो क्रैम्प्स किस वजह से आते हैं? दे आर बिकॉज ऑफ व्हाट? दे आर बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड इन अवर मसल्स। हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और ये लैक्टिक एसिड की वजह से वी फील क्रैम्प्स, जलन होते हैं, है ना। और जो मसल से अपने वो कैसे होते हैं? ऐसे लगते हैं कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। फिर उसको हम थोड़ा सा उसको घिसते हैं, मालिश करते हैं, या उसके ऊपर गर्म पानी से अगर हम उसको सेके, थोड़ी देर बाद में हमें थोड़ा सा अच्छा फील होने लगता है। व्हाई? बिकॉज दैट लैक्टिक एसिड गेट डिसॉल्व इन अवर ब्लड। वाटर के साथ में मिक्स होकर थोड़ी देर बाद उसका इफेक्ट कैसे हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है ना। सो दिस इज अनएरोबिक रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन ह्यूमंस। ओके, सो दीज आर 3 इक्वेशंस फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, anaerobic respiration in other organisms, microorganisms, and anaerobic respiration in humans. Aerobic respiration में food is burned with the help of oxygen and energy is produced along with carbon dioxide and water. In anaerobic respiration or the process of fermentation, which is performed by yeast and other microorganisms, food is converted into energy. In this process, carbon dioxide gas and alcohol is produced. In third process, anaerobic respiration in humans, food is converted into energy, carbon dioxide and lactic acid. ठीक है, यहाँ तक की प्रोसेस समझी, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।